Hi, welcome to the Tomorrow's Table. Myself, Hitesh Saklani. I'm the founder and CEO of the Tomorrow's Table. In Tomorrow's Table, we are fascinating about how the policies are made and what challenges come behind them. And on today's show, we have a very special guest. She's the founder of the Middle East Forum and the foreign policy analyst, Dr. Shubhada ma'am. Welcome, ma'am. And thank you so much for calling me. And I'm very proud of your ventures and the entire team that you have with you. Thank you, ma'am. So before we start, yesterday I came across a quote from very controversial person, and he said that when diplomacy ends, war begins. So do you think it's correct? See, in today's changing global world order, जिस तरीके से हम समाज को समझते हैं, और अगर हम इंडिया में बैठ के समाज को समझने की कोशिश करते हैं, तो we have to understand few couple of rules which are there. First is that diplomacy and war are two sides of the same coin in the sense that both of them are controlled by people who do not really have skin in the game. जब वॉर में इनोसेंट्स लोग मरते हैं, उनका डिप्लोमेसी का कोई एक्सेस नहीं होता है, वो लेयर्स अलग होते हैं. और दूसरी तरफ जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो ग्रास रूट्स लेवल की रियलिटी से बहुत अलग होते हैं. तो एक तरफ से बोथ आर साइड्स ऑफ द same coin. But at the same time, the point is that today the lines between what is a war, what is a conflict, and what is the level and meaning of diplomacy when there are so many proxies and allies involved has become very blurred. तो और ज़रूरी नहीं है कि आप इस टाइम एंड स्पेस में कोई अगर आपका साथ दे रहा है तो अगले टाइम एंड स्पेस में भी दे, जैसे कि यूएस के ट्रेड टैरिफ्स इंडिया के खिलाफ. नो, at one point of time, during the time of Nixon, during the time of Bill Clinton, they were very, very critical of India. But things started changing, especially around George Bush Jr.'s after 26/11. And then again you see the change. So it's always in a state of flux. War is always also in a state of flux. Diplomacy is also in a state of flux. But who really pulls the card? Where does the buck stop? That no one really knows ever. Correct, ma'am. So when we talk about war, ma'am, Middle East is always remain a very hot spot for the war and conflict. And if we talk about recent Israel and Palestine war, so can you give us a brief about when it started and what was the reason for this conflict? देखिए, अब 5 मिनट में बताना बहुत मुश्किल है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट. तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि towards the end of 1890s, एक ऑस्ट्रिया का Jewish journalist था. His name was Theodor Herzl. He was covering a court proceeding of a Jewish army guy called Dreyfus in France. Dreyfus को उसके ऊपर there was this entire concept ये लगाया गया था कि he has been doing espionage for Germany. उस कोर्ट रूम में Theodor Herzl was the only person who was Jewish, perhaps. And then everyone got up and started chanting, "Death to the Jew, death to the Jew." This is France, जहाँ enlightenment हुआ है. Now the fact is that Dreyfus actually was not involved. कुछ सालों बाद पता चला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं था. This is the famous or infamous Dreyfus affair. But Jews were not allowed in Europe. The diaspora was not allowed to live openly in other places. Ghettos में रहते थे. They were not given corporate jobs or public services में. They can be in business, they can be in science, but they cannot be in government services. They cannot serve in many other civil services. तो एक तरीके का alienation था. Theodor Herzl ने फिर ये सोचा कि if there is a country for us where Jews of all the world feel safe to live, it would be safer for us. ये कोई religious इसमें angle नहीं था. Okay. The religious angle slowly and slowly आया because the political movement of Zionism कोई एक चीज नहीं है. इसकी बहुत सारी धाराएं हैं. ये socialist भी है, ये environmentalist भी है, इसका labor का भी part है, इसमें capitalism का भी part है, इसमें बहुत सारे different movements हैं. तो पहले तो मुद्दा ये था कि आप इतने सारे Jews जो यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में भी और यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इतने सालों से रह रहे हैं, they will have different cultural ideology. Hebrew was also not spoken.
Yiddish was the language, but Hebrew as an official language was also not spoken. जैसे आप अभी के समय में समझ लीजिए संस्कृत. तो थियोडर हज़ल ने कोशिश की कि लैंग्वेज जो है इसका पूरा डिसेमिनेशन हो, एक जूइश आइडेंटिटी, कॉमन जूइश आइडेंटिटी बने, और उसने वर्ल्ड ज़ायनिस्ट कांग्रेस बनाया जिसमें बहुत सारे जूज आए भी. अब मुद्दा शुरू होता है 2 नवंबर 1917 को. जो फॉरेन मिनिस्टर हैं यूके के, बल्फूर, लॉर्ड बल्फूर, वो एक लेटर लिखते हैं 67 वर्ड का. किसको लिखते हैं? लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को. ये एक जूइश बैंकर हैं जो आज के दिन भी उनकी फैमिली यूएस, यूके में मैक्सिमम दे कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज एंड बैंक्स. एंड दिस इज द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. Balfour writes that in Palestine, which means that Balfour recognizes that there's a place called Palestine. Okay. उस लेटर में लिखा है, और उसमें लिखा है कि जो वहां के नॉन जूइश लोग हैं उनको सिविल और रिलीजियस राइट्स का हक है, और जो जूज आएंगे उनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक राइट्स का हक है. कहीं भी इजरायली स्टेट की बात नहीं होती है. यही लॉर्ड बल्फूर ने 1904-1905 में यूके में एक एलियंस एक्ट पास किया था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट Jews to immigrate to India, to UK actually. वो चाहते थे, he was actually more anti-Semitic. लेकिन चीजें जब बदली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जूस की मदद चाहिए थी, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड की फंडिंग कैपेसिटी की मदद चाहिए थी, तो he had to go down, but he was a closet anti-Semite. Jewish diaspora होलोकॉस्ट से ही नहीं प्रॉब्लम में है, उससे पहले भी 1902 में, 1903 में रशिया में, जो सोवियत यूनियन है या रशियन एम्पायर है, एक्चुअली रशियन एम्पायर में जो गांव जहां पे जूज रहते थे उनको जलाया गया था. There were so many Jews who were killed. That was basically the first chapter. Holocaust बाद में आया है. So this kind of alienation towards Jews, और जो उस साइड ईस्टर्न यूरोप और रशियन एम्पायर में रहते थे उनको अश्केनाजी जूस बोलते हैं. जूस 3 तरीके के होते हैं. पहला है अश्केनाजी जो ईस्टर्न यूरोप में होते हैं. दूसरा है सेफार्दिक जो स्पेन और पोर्टुगल से आते हैं. और तीसरे होते हैं मिजराही जूस जो मिडिल ईस्ट में पैदा ही हुए हैं, जो एथनिकली मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया के ही हैं. इनफैक्ट पहला जो बैच आया था जूस का वो रशिया या रशियन एम्पायर से ही आया था. कुछ स्टूडेंट्स शुरू किए थे कि इजराइल की तरफ आएंगे. बल्फूर ने और भी दिए थे जगह का रिकमेंडेशन, जैसे युगांडा, माडागास्कर. लेकिन जेरूसलम के कारण इजराइल was the chosen place जिसको रिलीजियस अप्रूवल मिलता. अब धीरे धीरे करके जूस का वहां पे आना शुरू हो गया. जूस ने वहां किबुत्स और मेहनत की, तो बहुत सारे अरब के भी लोग वहां पे आके सेटल करना शुरू किए. ऑटोमन एम्पायर जब खत्म हुआ तो एक ब्रिटिश मैंडेट आया. ब्रिटिश मैंडेट के दौरान अरब्स ने भी रिवोल्ट किया, और जूस के जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जैसे हगाना और इरगुन, उन्होंने भी रिवोल्ट किया. और ये काफी सालों तक चलता रहा, खासकर 1930s में. फिर उसके बाद आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है. अब मुद्दा ये है कि जब ब्रिटिश का एम्पायर दे स्टार्टेड डिटीरियोरेटिंग एंड फेलिंग एट वेरियस प्लेसेस, तो ये मैंडेट का रीजन भी उनको छोड़ना पड़ा. जब वो छोड़ के गए और यूएन ने लिया, चीजें जो ट्रांजिशन में थी, और जूस के पास ज्यादा फाइनेंशियल पावर था, ज्यादा कोहेसिव पावर था, पॉलिटिकल पावर था, इंटेलिजेंसिया का पावर था. अरब्स को क्यों बुरा लगा था? अरब्स क्यों रिवोल्ट कर रहे थे? पहले चीज तो मैं बता दूं कि पैलेस्टीनियंस होते कौन हैं. पैलेस्टीनियंस मुस्लिम्स होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, और जूस भी होते हैं. तीनों. पैलेस्टीनियन जू को इजरायली सरकार आज के दिन इजरायली अरब बोलेगी, लेकिन है वो क्या? मिजराही जूस या पैलेस्टीनियन जूस.
अगर ये कोई बोलता है कि ये बॉर्डर पैलेस्टीन का फिक्स नहीं था ऑटोमन एम्पायर के टाइम पे, तो वो सही है, लेकिन ये क्वेश्चन भी सही है कि इजराइल इकलौता ऐसा कंट्री है जिसका ना कोई फिक्स कैपिटल है ना कोई फिक्स बॉर्डर है, राइट? जहां तक बात रही कि अरब्स ने रिवोल्ट करना क्यों शुरू किया, पहले तो उनकी लैंड, कोई इस बात पे मुद्दा या डिबेट है ही नहीं। सबसे पहला अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से देखें तो सबसे पहला रिलीजन जो आया वो जुडाइज्म था, और भी बहुत सारे रिलीजन थे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही। दूसरा फिर क्रिश्चियनिटी था और तीसरा इस्लाम। 80 साल की उम्र में अब्राहम जो इराक के साइड में रहते थे, उनको रेवलेशन हुआ कि वो लिवांत के रीजन में जाएं और वहां पे एक नया मुल्क शुरू होगा इजराइल के नाम से। अब्राहम और सारा, इनकी ये स्टोरी है। और ये तीनों जो मोनोथेइस्टिक रिलीजन है, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सारे के सारे अब्राहम, सारा और जो उनकी हैंडमेड थी उनसे शुरू होते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि अरब्स ने रिवोल्ट क्यों किया, क्योंकि जैसे इंडिया में आप देखें, जो ब्रिटिश इंडिया में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने से पहले जब गांधी केम बैक टू इंडिया इन 1915 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तब ब्रिटिश ने क्या बोला था? ये बोला था कि अगर जो हमारे जवान हैं, सिख हैं, पंजाबी हैं, राजस्थानी हैं, जो जवान हैं वो अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी का साथ देंगे तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगा। हुआ तो ऐसा नहीं, लेकिन यही चीज अरब्स को भी बोला गया कि तुम्हारी नस्ल अलग है, तुम अलग हो, तुम्हें रूल कर रहे हैं ऑटोमन तुर्क्स, तुर्क्स की नस्ल अलग है, वो तुमसे नंबर में कम है और तुम्हारी लैंड ज्यादा है, और कैसे तुम उनको रूल करने दे रहे हो? इफ यू फाइट विद अस इन द ब्रिटिश आर्मी इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, तो हम तुम्हें अलग अलग स्टेट का दर्जा देंगे। इसी का एक साल का लेटर था, करस्पॉन्डेंस था 1915 से 16 में, which was between McMahon, who was the envoy of UK to Egypt, and हुसैन शरीफ ऑफ मक्का। हुसैन मैकमोहन अग्रीमेंट बोलते हैं। तो आप 1915 से 16 तक एक ब्रिटिश एम्बेसडर अरेबियन लीडर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, लेटर्स लिखे जा रहे हैं, इनके आर्काइवल प्रूफ हैं, और दूसरी तरफ जो फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, वो रॉथस्टाइल्ड को दूसरी चीज बोलता है। तो ये ब्रिटिश डिप्लोमेसी में कोई नई बात नहीं है, डिवाइड एंड रूल और किस तरीके से उसको फायदा उठाना, ये कोई नई बात नहीं है। ट्रूमन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, अगर हम 1948 की बात करते हैं, 15 मई, तो ट्रूमन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे वो ज़ायनिज्म में विश्वास नहीं करते थे। बहुत लोगों ने उनको कोशिश किया था, बहुत सारे इजरायली लीडर्स ने कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं उस चीज को सपोर्ट करते थे। और इजराइल को ये चीज को पता था कि अगर यूएस उनको तुरंत सपोर्ट नहीं करेगा तब उनके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का कोई फायदा नहीं है। द स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब ट्रूमन अपने ग्रोइंग एज में, जब आपके उम्र के होंगे, तो जब वो यूएस आर्मी में काम करते थे तो उनके एक बेस्ट फ्रेंड थे एडी जेकबसन, जो एक जू थे। एंड मोमेंट पे एडी जेकबसन ने ट्रूमन का आइडियोलॉजी चेंज किया, और उसके कारण, उस दोस्ती के कारण, ट्रूमन ने समझा कि जूइश फ्लाइट क्या थी। इस पूरे प्रोसेस को बेहतर तरीके से किया जा सकता था। उस समय जो पार्टी पावर में आई वो लेबर पार्टी थी। आज के दिन इजराइल में लेबर पार्टी जो है फ्रैगमेंटेड है, उतना पावरफुल नहीं है। आज के दिन हो क्या रहा है, अगर इस चीज को आप शिफ्ट करके 7 अक्टूबर पे आते हैं, तो क्या 7 अक्टूबर 2023 इजरायली स्टेट के लिए एक सरप्राइज था? तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि 2009 के बाद से, आफ्टर 2009, बेंजामिन नेतन्याहू प्लेड अ पिवटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन creating the tunnels and making the Hamas activities stronger in Gaza. क्यों? क्योंकि
इधर अगर आपका गाजा है, ये इजराइल, इधर वेस्ट बैंक है। वेस्ट बैंक को रूल फतह पार्टी करती है, गाजा को रूल हमास करता है। ये दोनों कभी साथ में ना मिले। तो 2009 के बाद, और ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, कतर गेट स्कैंडल, हमास के टनल्स किस तरीके से, अंडरग्राउंड में किस तरीके से होंगे? बेत जनून, जबलिया, खान यूनिस, गाजा सिटी, अगर ये आपका ग्राउंड है तो उनके टनल्स ऐसे लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर, पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर कितना भी आप डिस्ट्रक्शन करें, अंडरग्राउंड टनल्स इतने डीप रूटेड हैं और इतने लेवल्स पे हैं कि कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ेगा नहीं। 7 अक्टूबर से पहले, इनफैक्ट जनवरी 2023 में इजरायली सिटीजन्स ने शुरू किया था प्रोटेस्ट करना नेतन्याहू के खिलाफ। काफी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि नेतन्याहू जुडिशियल पावर चेंज करना चाहता था, जुडिशरी का पावर कम करना चाहता था। क्यों कम करना चाहता था? अगर आप उसके डिफेंस में सोचे, बिकॉज देयर आर 4 करप्शन केसेस अगेंस्ट हिम एंड हिज वाइफ सारा। 4 corruption cases of money laundering, taking bribes, controlling Israeli newspapers, and many other things. Israeli citizens are very, very intelligent and active. Yes, ma'am. And they came out in the streets and they were like, this is corruption and we have to fight against it. So his position was very shaking. 2022 जुलाई अगस्त में न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन बताती है, एक 40 से 80 पेज का डॉक्यूमेंट है, जेरिको वॉल्स, जिसमें इजराइल, आईडीएफ, शिनबेत, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मोसाद, सबको एग्जैक्टली पता था कि हमास क्या करने वाला है, फुटेज पर फुटेज, प्लान ऑफ एक्शन। 7 अक्टूबर को खुद आईडीएफ के आर्मी के कुछ लोगों ने बताया, और बहुत सारे अब भी खुलासा हो रहा है कि पोस्टिंग से हटा दिया गया था और उनको वेस्ट बैंक की तरफ डाल दिया गया था। ये बात समझने की जरूरत है कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो आपके दिल्ली एनसीआर से बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया। 7 अक्टूबर हुआ। हमास को समझिए, हमास का एक विंग गाजा में है, हमास का एक विंग वेस्ट बैंक में है। हमास के विंग भी 2 तरीके से डिवाइडेड है लीडरशिप। एक उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक उनकी मिलिट्री लीडरशिप है। आपस में बहुत ही एनार्की है, बहुत ही एनार्की है। क्या हमास डिक्टेटोरियल ऑटोक्रेटिक है? बिल्कुल है। अगर गाजा में रहते हुए आप 2006 के बाद भले ही वोट लेके उनको लाया गया पावर में, लेकिन अगर आप हमास को क्रिटिसाइज करते हैं, आप गायब हो जाएंगे। हमास औरतों का, देयर इज नो जेंडर इक्विटी। क्या इस्लाम के धर्म पे लोगों को हमास ने अपने मूवमेंट में ज्वाइन किया? क्या छोटे छोटे यंग लोगों का मार्टियरशिप में उन्होंने एज अ प्रोपेगेंडा पीस यूज किया? क्या हमास इस्लाम को डिफेंड कर रहा है? नहीं, हमास एक पॉलिटिकल वायलेंट आइडियोलॉजी है यूजिंग इस्लाम, जो इस्लाम का फसाड ओढ़े हुए है। यहाँ पे कोई भी चीज धर्म के ऊपर नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया पैलेस्टीनियन जूस भी होता है। यहाँ पे सारा चीज लैंड ग्रैब के ऊपर है। हमास आगे क्यों बढ़ा? हमास इसलिए आगे बढ़ा क्योंकि और कोई ऑपोजिशन में था नहीं। हमास का जो मिलिटेंट विंग है उसको कासिम ब्रिगेड्स बोलते हैं। इनके स्टूडेंट्स विंग भी होते हैं, वेस्ट बैंक में भी हैं, बहुत सारे अलायंस 10 हैं। इनफैक्ट चाइना ने जब पैलेस्टीनियन फैक्शंस को बुलाया था तो 13 पैलेस्टीनियन फैक्शंस चाइना गए थे पिछले साल। सो द पॉइंट इज कि हमास ने जब अटैक किया, मोर देन 1200 इनोसेंट इजरायलीज वर किल्ड। ये एक सच है, देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दिस। दूसरा सच ये भी है कि इजराइल की अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन है कॉल्ड एज हैनिबल डॉक्ट्रिन। हैनिबल डॉक्ट्रिन में ऐसा होता है कि अगर आपका खुद का आईडीएफ का मेंबर या आपका खुद का सिटीजन
अगर किडनैप हो जाए या हॉस्टेज हो जाए तो आप उसको पहले खुद ही मार दोगे, क्योंकि वो कहीं स्टेट सीक्रेट ना दे दे। क्या इजराइल ने हैनिबल डॉक्ट्रिन भी यूज किया? हाँ, किया। क्या हमास के पास कोई बहुत कोहेसिव मिलिट्री आर्मी है? नहीं, वो गुरिल्ला वॉरफेयर करते हैं और टनल्स के अंदर अंदर करते हैं। अगर मैं मिलिटरीली बोल रही हूं, अगर इजराइल पूरा का पूरा गाजा ऑक्यूपाई कर सकता था तब वो शायद जीत जाता, जो अभी वो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने सैंपल्स में किया कि पहले नॉर्थ, फिर सेंट्रल गाजा, फिर साउथ गाजा, फिर हम लोग फिलाडेल्फी कॉरिडोर या नेत्जरिम कॉरिडोर बनाएंगे। क्यों किया ऐसे? क्योंकि उनके पास आईडीएफ में टैंक्स और लोग नहीं हैं। इजराइल को ऐसा लगा था कि अब बड़े वॉर्स जो हुए थे, जैसे 1967 का 6 डे वॉर या 1973 का यॉम किपुर वॉर, अब ये बड़े वॉर्स खत्म हो चुके हैं, अब नहीं होंगे। तो आईडीएफ ने अपने नंबर ऑफ टैंक्स, नंबर ऑफ पीपल जो रिजर्व में हैं, वो धीरे धीरे करके करना कम कर दिया था। उनको ये लगा कि इजिप्ट के साथ हमारा पीस ट्रीटी है, जॉर्डन के साथ हमारा पीस ट्रीटी है, हमास को हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस और इन्फ्रेंस में डिफरेंस होता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहूं, इंडिया में भी एक है पीएमओ, एक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, एक है रॉ, एक है आईबी। अगर चारों में मेल नहीं होगा तो कोई भी एनिमी देश उसका फायदा उठा सकता है। उसी तरीके से इजराइल में क्या हुआ कि जैसे मोसाद है, शिन बेत उनका डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, फिर उनका पुलिस जो है, पुलिस फंक्शनिंग है, उसके बाद उनका पीएमओ जो कैबिनेट है, आपस में मेल नहीं था। जहां पे इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, इन्फेरेंस फेलियर हुआ 7 अक्टूबर को, जबकि इजिप्ट में पहले ही बताया था इजराइल को कि 7 अक्टूबर होगा। बहुत सारे बेत्शेलेम में ह्यूमन राइट्स थिंक टैंक है जो पैलेस्टीनियंस के लिए काम करता है, वहां में काम करने वाली एक बहुत फेमस एक्टिविस्ट को भी हमास ने मारा। तो ये हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि भले ही 2006 में हमास पावर में आ गया, लेकिन ब्लॉकेड तो इजराइल ने 2006 से किया हुआ है। अगर आप ये सोचिए कि किसी देश के पास या किसी एक नेशन के पास ना अपना करेंसी है, ना अपना एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, तो वो क्या करेगा? वो एक ओपन एयर प्रिजन है। और गाजा में रहते कौन लोग हैं? वही लोग जो 1948 में इजराइल के बनने के बाद अपना घरों से रिफ्यूजीज बन के एक स्ट्रिप ऑफ लैंड में आ गए। दूसरी चीज ये हुई कि फिर नेतन्याहू ने 7 फ्रंट वॉर शुरू कर दिया, जिसमें इराक, ईरान, सीरिया, लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा, सारे के सारे इन्वॉल्व हो गए। क्या इजराइल की मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है, वहां के लोग या उतनी ट्रेनिंग है कि वो 7 फ्रंट वॉर पे उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं। दूसरी चीज, क्या इजराइल की आर्मी अभी किस चीज में स्ट्रांग है? ड्रोन वॉरफेयर में, आयरन डोम में, एरो 2, एरो 3, थार्ड मिसाइल, ये सब में स्ट्रांग है। लेकिन अगर हिजबुल्ला अटैक करता है, उसका रॉकेट का कॉस्ट होता है $300। आईडीएफ के आयरन डोम के पर टेस्ट बैटरी का कॉस्ट होता है $50,000। प्राइस डिफरेंस। तो बहुत प्राइस डिफरेंस है। अब इजराइल में एक और चीज हो रही थी, जैसे हमारे देश में भी होती है, सोशो इकोनॉमिक जो चेंजेस होते हैं। जो पहले नंबर पे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा आगे हैं वो हैं अश्केनाजी जूस। अश्केनाजी जूस वो हैं जो ईस्टर्न यूरोप और बाकी के देशों से आए थे। मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर्स आप इजराइल के उठा लो तो ईस्टर्न यूरोप से ही एंसेस्ट्री है, मतलब वो इजराइल जो आज का देश है वहां पैदा नहीं हुए थे। ये सबसे ज्यादा पावरफुल है, ये मिलिट्री में पावरफुल हैं, ये इंटेलिजेंसिया में पावरफुल हैं, ये इकोनॉमिक्स में पावरफुल हैं, ये आर्मी में पावरफुल हैं। फिर आते हैं सेफार्दिक जूस।
और थर्ड लेवल पे जो सोशो इकोनॉमिकली बहुत सफर करते हैं वो हैं वहां के खुद पैदा हुए वाले जूस, जो मिजराही जूस हैं। और चौथा जो पैलेस्टीनियन जूस मैंने बोला था, या फिर जो मिडिल ईस्ट में पैदा हुए जूस हैं, वो इराक के हों, वो ईरान के हों, वो कहीं के भी हों, जिनको इजरायली अरब बोला जाता है, वो सबसे ज्यादा एलिनेटेड हैं। तो ये एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है। दूसरा मुद्दा ये है कि अगर आप इजराइल में, इंडिया में 18 साल के बाद एक स्टूडेंट कॉलेज की तैयारी करता है, इजराइल में 18 साल होने के बाद आपको मैंडेटरी मिलिट्री कंस्क्रिप्शन है। इफ यू आर अ मैन 2 years, वुमन 1.5 years। जेंडर इक्विटी इजराइल में कंपैरेटिवली बेहतर है फ्रॉम ऑल द अदर मुस्लिम स्टेट्स। मुद्दे की बात यह है कि ये जो मिलिट्री कंस्क्रिप्शन में जो लोग होते हैं वो कहाँ डिप्लॉय होता है? ये 18-20 साल के बच्चे कहाँ डिप्लॉय होते हैं? वेस्ट बैंक में डिप्लॉय होते हैं, चेक पॉइंट्स पे डिप्लॉय होते हैं, गाजा और उसके बॉर्डर एरियाज पे डिप्लॉय होते हैं। Many of them suffer from post-traumatic stress disorder. Many of them. Can you imagine वो 2 साल का 1.5 साल का trauma that they see? Because punishment to the other is also a punishment to oneself. Correct. There's no difference between the one who gets punished and the one who is punishing. They lose the sense of self or belonging to a certain degree. अभी भी इजराइल के कितने सारे आईडीएफ के सोल्जर्स ने सुसाइड कमिट किया है, कल भी किया था। कितने पोस्ट ट्रोमैटिक साइकोलॉजिकल एंजाइटी से कवर कर रहे हैं। 2 सालों से उनको कोई छुट्टी नहीं मिली है, कोई ब्रेक नहीं मिला है, वो डबल टाइम की शिफ्ट में काम कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि नेतन्याहू पावर में रह सकें। ये कोई धर्म की बात ही नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स की बात है। अब आप बात करेंगे हिजबुल्ला। हिजबुल्ला भी सोशो इकोनॉमिक रीजन के कारण पावर में आया था। अगर आप लेबनान को देखें, लेबनान को मिडिल ईस्ट का पेरिस मानते हैं। लेबनान में 3 तरीके की मतलब सोशो इकोनॉमिक धाराएं हैं। पहले मैरोनाइट क्रिश्चियंस, दूसरी सुन्नी पॉपुलेशन और तीसरी शिया। जब फ्रांस ने लेबनान को कॉलोनाइज किया था, तब से लेके आज तक जो शिया थे वो लेबनान में सबसे ज्यादा एलिनेटेड थे, पिछड़े थे। लेबनान का जो बीरूत पोर्ट है और बाकी के जो पोर्ट्स, वहां पे कहीं कोई सोशो इकोनॉमिक उनको चांस नहीं मिलता था, ग्रोथ का चांस नहीं मिलता था। सोसाइटी में उनको अलग करके रखा हुआ था। तो हिजबुल्ला ने इस चीज का फायदा उठाया। इजराइल ने 1982 में इन्वेजन किया लेबनान का। जो उन्होंने जिस एरिया पे अटैक किया वहां ज्यादा शिया मुस्लिम्स थे, हमास सुन्नी है। वहां के लोग फिर ऑलरेडी दे वर क्रिटिकल ऑफ इजराइल, और खुद उनके लोगों पे हमला हुआ। एक बहुत कंट्रोवर्शियल हमला भी हुआ था, शाबरा शतीला मैसेकर, जिसमें कुछ का कहना है कि इसमें इजरायली इन्वॉल्व थे, कुछ का कहना है कि क्रिश्चियन फैलांजिस्ट इन्वॉल्व थे। वी विल नेवर नो, लेकिन इट वाज अ मैसेकर। हिजबुल्ला ने इस चीज का फायदा उठाया। हिजबुल्ला स्टेट विद इन द स्टेट बन गया। धर्म उसका फसाड है, चीजें सोशो इकोनॉमिक हैं, चीजें लैंड है। जो मासूम लोग हैं जो धर्म पे, क्योंकि आप, और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रही, शीना अयंगर एक बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी की, इंडियन इमिग्रेंट ही पेरेंट्स थे। शीना अयंगर देख नहीं सकती हैं। शी इज अ वेरी फेमस टेड स्पीकर। उन्होंने एक किताब लिखी पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, नहीं, आर्ट ऑफ चूजिंग, सॉरी। और आर्ट ऑफ चूजिंग में, एंड आई विल रिकमेंड एवरीवन शुड रीड दैट बुक, उन्होंने ये चीज बताया। वो अलग अलग कंट्रीज गई, साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज गई, वेस्ट एशिया की कंट्रीज गई, और उन्होंने ये चीज बताया कि जिस देश में जितने ज्यादा सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगा, उस देश के लोग उतना ज्यादा अपने रिलीजन पे विश्वास करेंगे। जो जितना गरीब देश होगा उसमें उतना ज्यादा रिलीजन स्ट्रांग होगा।
क्योंकि रिलीजन उसमें फिर आपको एक एस्केप देता है, एक राहत देता है, एक फेथ देता है, एक तरीके की स्पिरिचुअलिटी देता है। तो सबने इसका फायदा उठाया, हमास ने इसका फायदा उठाया, जो रिलीजियस लाइनिस्ट थे इजराइल के नाम पे कि हम माउंट जायन पे ये जायनिज्म को शुरू करेंगे और ये राइट ऑफ रिटर्न है, आलिया है, उन्होंने उसका फायदा उठाया, हिजबुल्लाह ने उसका फायदा उठाया, सबने धर्म का फायदा उठाया है। और ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ना हो कंट्रोल के। तो सिंपल सी ये बात है कि हसन नसरल्ला या हमास के इस्माइल दहानिया या फिर या सिनवर या इन सारे लोगों को मार के नेतन्याहू को कुछ समय के लिए राहत मिली, लेकिन आज भी अगर जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इजराइल में मैसिव सेंसरशिप है। लोग वहां पे आके तब भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऑफिशियल फिगर के हिसाब से 50 हॉस्टेज हमास के पास हैं, जिसमें से 20 जिंदा थे 2 वीक पहले, आगे का फिगर मुझे नहीं पता। इजराइल जो अटैक कर रहा है उस पे तो उसके खुद के हॉस्टेज भी जाएंगे, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू जो नेशनल सिक्योरिटी के हेड है, बेन गवीर या फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है हॉस्टेजेस से। इनको लिए वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा टूल बन चुके हैं। Just want to save their power. यस, और हॉस्टेज की फैमिलीज को सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएट किया जाता है। इजराइल के जर्नलिस्ट, अभी अनस जो अल जजीरा के जर्नलिस्ट थे और उनके साथ उनके जो 4-5 और जर्नलिस्ट कॉलीग्स थे जिनको मारा गया संडे को, इजराइल के जर्नलिस्ट उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेंसरशिप के बावजूद। अगर आप नहीं जाते हैं मिलिट्री कंस्क्रिप्शन में तो द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर यू इज कॉल्ड एज रिफ्यूजनिक्स। 18 साल के बच्चे तैयार हैं कि हम रिफ्यूजनिक नहीं होंगे, हम जेल जाएंगे, हम नहीं जाएंगे आईडीएफ में। वी कैन रिफ्यूज। एक तबका है इजरायली सोसाइटी में जो नहीं जाता है, वो है हरेदी जूस का। हरेदी जूस वो है जो रब्बाई बनना चाहते हैं, वो रिलीजियस प्रैक्टिस में है, तो वो ऑटोमेटिकली दे आर नॉट, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो आईडीएफ में सर्व करें। बाकी के लोगों को उनके खिलाफ गुस्सा है कि वी आर एट अ वॉर, 21 महीना हो गया, हरेदी जूस को अभी भी एग्जेम्पशन है। तो जो कोलिशन की पार्टी है नेतन्याहू, जो हरीदी ज्यूस को रिप्रेजेंट करती है, भले ही कम नंबर में है, लेकिन अगर वो किंग मेकर है, हट जाए तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाए। तो हरेदी ज्यूस का भी एक पॉलिटिक्स चल रहा है। तो अगर आप ये समझें कि क्यों ये चीजें चल रही हैं, पहला चीज, सिल्क रूट के टाइम से स्पाइस रूट के टाइम पे गाजा जो था हमेशा से एक बहुत ही बस्लिंग पोर्ट सिटी था, मेडिटेरेनियन के कोस्ट पे है। इसको आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस और मिलिट्री की तरफ से देखिए, रिलीजन हटा दीजिए, इकोनॉमिक्स, जियो इकोनॉमिक्स की तरफ से देखिए, पोर्ट सिटी था। 2022 में एक मरीन फील्ड के ऊपर ज्यादा काम होता है, पता चलता है कि गाजा के पास बहुत ज्यादा नेचुरल गैस और ऑयल उस तरफ सेडिमेंट्री रॉक्स पे है, पहला। दूसरा, बेंजामिन नेतन्याहू के फादर बहुत फेमस प्रोफेसर थे जिन्होंने ग्रेटर इजराइल के ऊपर काम किया था। ग्रेटर इजराइल में बहुत पार्ट्स आते हैं, जॉर्डन के भी आते हैं, इजिप्ट के भी आते हैं, सऊदी के भी आते हैं। आप वो मैप देखिए। नेतन्याहू ने अभी रिसेंटली बोला है कि द आइडिया इज ग्रेटर इजराइल स्पिरिचुअली, और वो थियोडोर हज़ल बनना चाहते हैं, जबकि थियोडोर हज़ल रिलीजियस नहीं थे। उन्होंने ड्रेफस अफेयर के ऊपर मुद्दा उठाया था। ड्रेफस अफेयर हमारी हिस्ट्री का बहुत ही ब्लैक चैप्टर है, नहीं होना चाहिए था ड्रेफस के साथ, ये गलत हुआ। दूसरी चीज, ग्रेटर इजराइल के साथ बहुत सारी चीजें और लिंक्ड हैं। इजराइल खुद सुएज कनाल को कंपटीशन देने के लिए एक बेन गुरियन कनाल बनाना चाहता है। भले ही इंडिया के साथ बात हो रही है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की, अभी तक नहीं पता है कि उसका फंडर कौन है। ट्रम्प तो फंड नहीं करेगा, नहीं। तो फंड कहां से आएगा इजराइल के पास? कैसे? आप सोचिए, इजराइल 7 अक्टूबर 2023 से लेके आज तक $85 बिलियन के डेब्ट में है,
जो ईरान के साथ वॉर हुआ था 285 मिलियन पर डे उसका खर्चा हुआ था, पर डे, एडिंग 85 कैलकुलेटेड। इसराइल के ऊपर अमेरिका ने 17% ट्रेड टैरिफ लगाया है। वो क्यों फंड करेगा आईएमएफ? वो खुद क्यों नहीं अपना कनाल बना ले? जियो इकोनॉमिक्स। फिर एक डेविड्स कॉरिडोर है। डेविड्स कॉरिडोर जो है वो उसमें वाटर पॉलिटिक्स आती है। इसराइल के पास ये डेजर्ट रीजन है, इसमें पानी कहाँ से आता है? तो जिसमें उसको गोलान हाइट्स चाहिए, उसमें सुबेदा चाहिए। तो अभी आप देखिएगा कि ड्रूज को प्रोटेक्ट करने के लिए इसराइल की सरकार ने सीरिया पे हमला कर दिया, क्योंकि उनको गोलान हाइट्स चाहिए। गोलान हाइट्स एक माउंटेनियस रीजन है, अगर आपको उसका पूरा कंट्रोल है तो आप आसपास का पूरा 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं। जो गोलान हाइट्स कंट्रोल करेगा वो पूरा का पूरा उस एरिया को कंट्रोल कर सकता है। लेबनान, सीरिया, इजराइल, जॉर्डन सारा देख सकता है। गोलान हाइट्स चाहिए। गोलान हाइट्स को जब इन्होंने लिया था 1967 में, उसमें एक इजरायली अरब था, यानी कि एक इजिप्शियन जू, एली कोहेन। टेक्निकली वो पैलेस्टीनियन जू हुआ। एली कोहेन मोसाद का एजेंट था। वो सीरिया में जाके बिजनेसमैन की एक्टिंग करता था और उसने गोलान हाइट्स में उसका सर्वे किया, रेकी किया, और भले ही वो सीरिया में फिर पकड़ा गया और उसकी बॉडी को 3 दिन तक फांसी लगा के रखा गया था, लेकिन एली कोहेन अगर नहीं होता, जिसको ये इजरायली अरब बोलते हैं, मैं इजिप्शियन जू बोलूंगी, तो इजराइल को 1967 में गोलान हाइट्स नहीं मिलता। एनेक्स 1981 में किया था। हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बोलते रही है कि गोलान हाइट्स सीरिया का पार्ट है, हमेशा से। अभी सीरिया पे अटैक करने से पहले अहमद अल शर्रा, जो हयात अल तहरीर अल शाम के लीडर हैं, पहले अलकायदा और जबत अल नुसरा और पता नहीं कहाँ कहाँ से उनका कनेक्शन है, जिनको वेस्ट टेररिस्ट मानता है, वो तैयार थे इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स करने के लिए, लेकिन उसने उससे पहले अटैक कर दिया ड्रूज के नाम पे। आप अपने हॉस्टेज को बचा नहीं पा रहे हैं, आप ड्रूज को बचाइएगा। चौथा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इजराइल अगर नहीं होगा, 7 अक्टूबर से लेके आज तक 1 मिलियन से ज्यादा डुअल सिटीजन जो इजरायलीज हैं वो इजराइल छोड़ के जा चुके हैं। वहां 2026, 27, 28 में मैसिव रिसेशन आएगा। सिंपल सी बात है, इजराइल जो है आज जो बना है उसके अभी भी बॉर्डर्स फिक्स्ड है नहीं। ईरान पे जब उन्होंने अटैक किया, 6th लेवल ऑफ टॉक होने वाला था यूएस और ईरान का, उस नेगोशिएशन टॉक उस संडे से पहले अटैक कर दिया। आज भी ईरान के पास 400 केजी का 60% प्लस इनरिच्ड यूरेनियम कहां पे है ये किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। जो सो कॉल्ड कोरियोग्राफ स्ट्राइक्स हुए थे, यूएस ने जो किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये सारी चीजें क्या नतान्ज, इस्फहान और ये सब के, क्योंकि उनका भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी है जो नॉर्थ कोरिया ने उन्हें सिखाया। ईरान धर्म, फिर से आप देखिए यहाँ पे, ईरान में 20,000 से ज्यादा ज्यूज अभी रहते हैं और जिसमें से 700 से ज्यादा को मुसादी एजेंट कह के ईरान की सरकार ने, आईआरजीसी ने गिरफ्तार कर लिया। बहुत सारे अफगान नेशनल्स को भी किया, बहुत सारों को डिपोर्ट भी किया है। ईरान में खुद जेंडर इक्विटी के नाम पे बिल्कुल सही नहीं है। महसा अमीनी जो एक कुर्दिश वुमन थी, 2-2.5 साल पहले उसको बेरहमी से मारा गया था। आप नकाब पहने, आप हिजाब पहने, आप चौदौर पहने, आप नहीं पहने, उससे कोई स्टेट कैसे डिफाइन कर सकता है?
और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं है, क्रिश्चियनिटी में नन्स का अपना अटायर है, हर धर्म में अटायर है। लेकिन जब स्टेट इम्पोज करता है और मैंडेटरीली इम्पोज करता है, तब वो घबराहट की बात है, क्योंकि औरतें बहुत बड़ा रोल प्ले की थी अयतुल्ला खोमेनी को 1979 में पावर में लाने के लिए, जब वो इराक से फिर फ्रांस और फ्रांस से वापस ईरान आए थे। और मैं एक और चीज बता दूं कि और ये चीज कोई बोलता नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन डिप्लोमेट थे जीएस अय्यर, जो वहां ईरान में उस समय पोस्टेड थे। 1980s में कोई फ्लाइट नहीं थी ईरान में, उस समय इंडियन सिटीजन्स नर्स और डॉक्टर्स की तरह काम करते थे, और कुछ सिख फैमिलीज भी ईरान में थी। सबसे पहले हम जब भी कोई भी क्राइसिस होता है, 80 से 88 तक ईरान इराक वॉर चला था, तो हमारी एम्बेसी का पहला होता है कि अपनी डायस्पोरा को बचाइए। गेस करो किस देश ने बचाया होगा हमारी डायस्पोरा को, इंडियन नेशनल्स को? इजराइल? नहीं, गेस करो। कोई फ्लाइट नहीं है। कैसे लैंड रूट की तरफ से इंडिया आएंगे इंडियंस? थ्रू अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तानी एम्बेसडर ने मदद की थी। ओके। उन्होंने पाकिस्तानी वीजा दिया था, फिर वहां से क्वेटा से फ्लाइट लेके सब आए थे। ये जीएस अय्यर की किताब में भी है, 4 क्राइसिस। तो बात सिंपल सी ये है कि ईरान में भी धर्म के नाम पे जो उन्होंने थियोक्रेसी किया है, वो ये नहीं मानते कि 1979 में रेवोल्यूशन हुआ और वो खत्म हो गया, फाइनल स्टेज। उनका फाइनल स्टेज है पूरी दुनिया में वो रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट हो। क्यों? पूरी दुनिया में कोई भी रेवोल्यूशन क्यों एक्सपोर्ट हो? तो ईरान की ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनसे मैं अग्री नहीं करती, लेकिन इजराइल ने जो उस पर अटैक किया वो अनकॉल्ड फॉर था। जब पीस नेगोशिएशन चल रहा है तब अटैक करने की क्या जरूरत है? जब वो तैयार है यूएस के साथ बात करने के लिए, तब अटैक करने की क्या जरूरत है? ईरान को वो ऑक्टोपस के जैसे टेंटिकल्स होते हैं ना, तो वो उसका हेड मानते हैं, और बाकी प्रॉक्सीज को टेंटिकल्स मानते हैं। ईरान को कंट्रोल करने की जरूरत 2 तरीकों के कारण है। पहला डेविड्स कॉरिडोर और दूसरा बेन गुरियन कनाल। बेन गुरियन कनाल बनाने के लिए आपको फिर हुथीज को भी कंट्रोल करने की जरूरत है। हुथीज में भी जो येमेन का इलाका है, अमेरिका के बाद अगर पूरी दुनिया में कोई दूसरा देश है, अब यूक्रेन भी आ सकता है इसमें, लेकिन कोई दूसरा देश है जहां हर इंसान के पास पिस्टल है, वो येमेन है। उसमें बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत पेट्रियार्कल है। हुथी एक ट्राइब है जो अरब अपराइजिंग के बाद ज्यादा पावरफुल हुआ था। हुथी सऊदी अरेबिया, यूएई और बाकियों से लड़ रहा है और अभी भी कामयाब है। अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, और अगर आपको, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंडिया में बैठे बैठे, अगर हम मिडिल ईस्ट नहीं गए हैं, ना हमें वहां की भाषा आती है, ना अरबिक आता है, ना हिब्रू आता है, ना तुर्किश आता है, ना पर्शियन आता है, तो अब हम अपना ही एक इंग्लिश कॉलोनियल नेगेटिव नैरेटिव के सर्वेंट हो जाते हैं, जो गलत है। आप हुथी लीडर्स के अकाउंट्स देखिए, उनके मैसिव फॉलोइंग है। यहां तक कि जो इंडियन नर्स का जो केस था यमन में, उसमें भी हुथियों और उनके सपोर्टर्स ने क्लियर किया कि ये कोर्ट का मामला है, इसमें हुथीज इन्वॉल्व नहीं है। प्रिजन वो सना में थी। हुथीज जो है एक जैदी शिया सेक्ट से आते हैं। हुथीज का पावर कहां से आता है? उनको सैटेलाइट इमेजरी मिलती है चाइना से, उनको आर्म्स और सारी चीजें, क्योंकि वो पैटर्न में करते हैं अटैक, लगातार नहीं करते, तो वो ईरान के थ्रू आता है। ईरानियंस ये कहते हैं कि ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है कि हम हुतीज के साथ मिले हुए हैं, असलियत में हम नहीं हैं। तो ये बात कुछ लेवल तक सही हो सकती है, क्योंकि ये सारे ऑपोजिशन या प्रॉक्सी ग्रुप्स में बहुत एनार्की है, ये होमोजेनस नहीं है। सब वहां मार्टियर बनना चाहते हैं, सब वहां एक लीडर बनना चाहते हैं, अपना नाम छोड़ना चाहते हैं, वो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। तो अब बात यह है कि क्या आज का इजराइल
जो अपने हॉस्टेजेस को वापस नहीं कर पा रहा, आज का इजराइल जो हॉस्टेज की फैमिलीज को ह्यूमिलिएट करता है, और मैं इजरायली स्टेट और सिविलियंस में डिफरेंशिएट करूंगी, बहुत सारे इजरायली मेरे दोस्त हैं, मैं स्टेट की बात कर रही हूं। आज का इजराइल, जब इंडिया में ये बात की जाती है तो कहा जाता है कि हिंदूज आर प्रो इजराइल। क्यों? दो, इस लॉजिक में भी प्रॉब्लम है। पहला, हिंदुइज्म मोनोथेइस्टिक नहीं है, पॉलीथेइस्टिक है। जुडाइज्म मोनोथेइस्टिक है, वो मल्टीपल गॉड्स को नहीं मानते। दूसरा, इजराइल को हम इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर पाकिस्तान अटैक करेगा, चाइना अटैक करेगा, तो इजराइल हमारी मदद करेगा। इजराइल जो हमें सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, या जो मिलिट्री सबमरीन और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, उसमें एस्पाइनेज भी करता है, like we saw in Kargil war. तो वो सारी चीजें भी करता है। इंडिया में भी ज्यूइश पॉपुलेशन है, मिजोरम, मेघालय, Goa. महाराष्ट्र, गोवा, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। ऊपर से 32,000 मतलब 85,000 इंडियन जूस इजराइल में भी है, और 32,000 इंडियन स्टूडेंट्स प्लस इंडियन लेबरर्स इजराइल में भी काम कर रहे हैं। तो मेरा ये चीज है पूछने का कि हम हर चीज को अभी हिंदू मुसलमान के नजरिए से क्यों देखते हैं। आप जियो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखिए, क्या अमेरिका अगर बहुत टैरिफ कर देगा 50% जो वो धमकी दे रहा है, क्या इजराइल हमारा साथ देगा? No. नहीं कह सकते। कर भी सकता है, कर भी सकता है। जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था 1971 में, तब कांग्रेस पार्टी ने इजराइल से मदद मांगी थी। इजराइल पहला देश था जिसने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। अरब स्टेट्स ने 1974 में किया था, इजराइल ने 1972 में कर दिया था। तो बात यह है, इसको धर्म के नजरिए से ना देखें। अगर आप धर्म के नजरिए से इस चीज को समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं आपकी सोच जो है वो कोई ना कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये सारा चीज सोशियो इकोनॉमिक है, ये जो जियो पॉलिटिक्स है, ये लैंड ग्रैब है, ये मॉनेटरी है। It's about power. बिल्कुल। अब पावर का भी मॉनेटरी पावर। जहां तक बात रही कि इंडिया ने जब जब इजराइल से मदद मांगी है, वो 62 वॉर में हो, 71 में हो, कारगिल के टाइम पे हो, इजराइल ने किया है। इजराइल लेकिन जब हमें मदद करता है, आर्म्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है, तो हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है, जिसका जो सपना है, वो कहीं ना कहीं उल्लंघित होता है, क्योंकि उसके सारे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में सर्वेलेंस या फिर स्पाइनेज के पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं। तो हमारा डीआरडीओ और हमारी डिफेंस, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसको इस तरीके से देखें, हिंदू मुस्लिम का इसमें कुछ नहीं है। तीसरी चीज है, इजराइल पे हम सिर्फ इंटेलिजेंस, मोसाद के साथ ट्रेनिंग और ये सारी चीजों पे निर्भर नहीं है। हम वाटर हार्वेस्टिंग, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, सेमीकंडक्टर्स, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारी चीजों पे इन्वेस्टेड है। क्या कल को, बहुत बड़ा ये मुद्दा है कि क्या कल को हमें एक ऐसे पोजीशन पे आना पड़े जिसमें हमें ईरान या फिर इजराइल को चूज करना हो, या फिर एक ऐसे पोजीशन पे आना पड़े कि हमें, जिसमें मोदी गवर्नमेंट यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ज्यादा अग्रीमेंट साइन कर रही है, हमें उनको चूज करना हो या फिर इजराइल को चूज करना हो। जबकि एक कहावत है कि हर अरब जो है प्रो ह्यूमन राइट्स है, लेकिन अपने देश में नहीं। बिल्कुल। तो ये चीजें आएंगी तो क्या प्रेशर आएगा। अब आप अरब देश का भी हिपोक्रेसी देखिए। हम पे लांछन लगता है कि आपने पैलेस्टीनियन कॉज को छोड़ दिया, आपने डीहाइफिनेशन किया। डीहाइफिनेशन का मतलब होता है कि आप ऑपोजिट पावर्स या ऑपोजिट कॉन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज को दोनों के साथ बायलैटरल टाइज बना के रखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज कब से कर रही हैं। इजिप्ट भी कर रहा है, जॉर्डन भी कर रहा है, पूरे गल्फ की कंट्रीज कर रही हैं, उनके टेसिट अलायंसेस हैं इजराइल के साथ। लेकिन क्वेश्चन पड़ता है इंडिया पे, क्यों?
तो मुद्दा बस ये सिंपल सा हमें समझना है कि आज हम जिस रियलिटी में है वो पोस्ट ट्रुथ है, हाइपर रियल है। यहाँ क्या सच है नहीं सच है ये समझ पाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैं सिंपल सा आपको एक एग्जांपल दूंगी। जब अल जजीरा के जर्नलिस्ट को ये बोला अनस अल शरीफ को जब मारा गया तो एक ट्विटर का मैसेज इंग्लिश में सर्कुलेट हुआ, टेलीग्राम का मैसेज ट्विटर पे, जिसमें वो बोल रहा था कि हमास के हीरोज अभी भी घूम रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट चीज, हम इंडिया में बैठे हुए हम लोगों ने तुरंत मान लिया कि हाँ एकदम बिल्कुल टेररिस्ट। नहीं, आप सोचिए, एक सेकंड लीजिए। वो अरब जर्नलिस्ट है ना, तो वो अरबिक में लिखेगा ना। टेलीग्राम अरबिक से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करता है, कोई भी अगर टेलीग्राम चूज करे। चलो ये बात मेरी आपने नहीं मानी, टेलीग्राम पे जाओ, जाके देखो कि टेलीग्राम डेट लिखता है क्या? नहीं। उस मैसेज में डेट लिखा हुआ था, मतलब वो मैसेज डीप फेक है। अगर आपको भाषा नहीं आती तो दिमाग तो हम अपना यूज कर सकते हैं। कभी भी टेलीग्राम डेट नहीं देता, टाइम देता है मैसेज का। ये डीप फेक्स है, ये प्रोपेगेंडा है। तो आज की दुनिया में अगर हमें समझना है, अगर एज एन इंडियन मुझे चूज करना है, तो पहले तो मैं जो इजराइल का इंटेलिजेंस फेलियर है उससे ये चूज करूंगी कि हमें हमारे पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, रॉ और आईबी के बीच में मेल रहे, इन्फेरेंस और इंटेलिजेंस का फेलियर ना हो। ये एक लेसन हमें सीखना है। दूसरा, हमें ये सीखना है कि डिप्लोमेसी को हम डिहाइफिनेटेड रखें, बाकी के देश कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करें। तीसरा, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न, प्रो पीस, प्रो डेवलपमेंट जो इंडिया का स्टैंड है उस पे वो टिका रहे। आज क्वेश्चन कर रहे हैं, कल क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 साल बाद क्वेश्चन करेंगे, शायद 10 साल बाद ना करें। सारी चीजें ट्रांजिशन में हैं। और जो कंट्रीज क्वेश्चन करती हैं उनको भी पता है कि इंडिया उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जहां तक बात रही, जो मुझे एक स्टूडेंट ने बात समझाई थी और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हिंदुत्व को जिस तरीके से हम समझते हैं और मीडिया नैरेटिव्स भी जिस तरीके से समझाती है वो गलत है। हिंदुत्व का मीनिंग क्या है? हिंदुत्व का मीनिंग ये है, ये समझाना कि जो कंट्री आप देख रहे हैं ना, इंडिया, या जो आप भारत जिसको समझते हैं, ये 1947 से नहीं आया है, ये उससे पहले से ही। ये हड़प्पा और उसके पहले प्री हिस्टोरिक टाइम्स जो इंसान को कभी नहीं पता चलेगा तब से है। एक सिविलाइजेशनल मूवमेंट है। हिंदुइज्म उसका प्रतीक है। इसीलिए काफी सारे जायनिस्ट हिंदुइज्म और जायनिज्म के बीच में देखना चाहते हैं एक समझौता या फिर एक सपोर्ट या सॉलिडारिटी, लेकिन ये दोनों बहुत अलग अलग धर्म है। फ्रीडम ऑफ थॉट किसी भी अब्राहमिक रिलीजन में नहीं है, हिंदुइज्म में है, हमारे वेदास में है। तो हमारा जो सोच है, हमारा जो समझने का विकल्प है, हमारा जो चाणक्य नीति भी है, वो ज्यादा ह्यूमेन है। अगर हम ये एज एन इंडियन समझने की कोशिश करें तो हमें पहला चीज तो ये समझना है कि डायस्पोरा हमारी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम कोई एक साइड का पक्ष नहीं दे सकते। 9 मिलियन से ज्यादा इंडियंस गल्फ कंट्रीज में है, हमारी सरकार उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। उनका रेमिटेंस हमारे लिए मतलब इंपॉर्टेंट है, हमारे मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प अगर टैरिफ ट्रेड कर देगा तो कहाँ से, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से डिप्लोमेसी को हम यूज कर सकते हैं। और पहला उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हम अपनी भाषा वहां सिखाएं और वहां की भाषा यहां सीखें, ताकि तब हम समझ पाए कि कहाँ की सरकार क्या गेम खेल रही है और कहाँ की कंट्री का क्या रियलिटी है। अब मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, अब आप क्वेश्चन पूछें। Okay. So, ma'am, when we talk about, I think from last 3 years, Indian foreign policy has been
change. Like before that, when America put sanctions on Iran, so India back from like buying the oil. But now we see that India buying the Russian oil, despite from sanctions from America. So what's your thought on this thing? Like how India's foreign policy is changing related to the Middle East? Like India has good relations with UAE, Saudi Arabs, and Israel. See, the India imports massive amount of oil. The quality of Iranian oil was better than what we get from Iraqi or Saudi oil. But they are expensive. Yes. Our investment in Iran is at Chabahar port, which has been going on for almost 10 years now. Yes. But because of the delay due to the sanctions, because of our own Indian companies that were trading, our relation with Iran suffered. हमारा रिलेशन ईरान के साथ कब से है? स्पाइस रूट से है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मुगल के टाइम से है. हुमायूं जो हैं, जब शेरशाह सूरी ने उनको भगाया था तो वो पर्शियन एम्पायर, सफेविद एम्पायर में गए थे. वहां पे he converted to Shia Islam. He is the only Mughal who converted to Shia Islam. और उसके बाद वो लौट के आए और सफेविद एम्पायर ने भी उनको मदद किया और फिर वापस मुगल एम्पायर में उन्होंने अपना राजगद्दी संभाला. और जो आप इंडिया में ताजमहल, हुमायूंस टूम्ब, खाने खाना या फिर बाकी का जो भी इमारत देखते हैं, ये सारा इंडो इस्लामिक जो है, ये इंडो ईरानियन है. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका फायदा चाइना ने उठाया. China took massive. If you go to the Gulf countries, you will see the signboard in 3 languages: English, Arabic, Chinese. I have been startled by many of them. Because when I go to the airport and I see, why is Chinese here? So that is the level of penetration that China has in the Gulf region through BRI and many other initiatives. Second, we learned from our mistakes with Iran. The stakes were higher. With Russia, the stakes in terms of profitability were more. What was India doing in terms of foreign policy? आप रशियन ऑयल ले रहे हैं. देखिए, यूरोप ने सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर. 30,000 से ज्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ है. उनका ये कहना है कि डोनबास, डोन्स्क, लुहांस्क को इन्वेड किया रशिया ने 2022 में, जबकि ये कहानी 2014 से भी पहले की है. क्रिमिया के एनेक्सेशन और बहुत सारी चीजों के ऊपर है. रशिया का ये कहना है कि वहां पे जो रशियन स्पीकिंग एथनिक माइनॉरिटी डोन्स्क, लुहांस्क और डोनबास में रह रहे थे, उनको यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने उनकी भाषा छीन ली थी, उनका कल्चर छीन लिया था. इट वाज रेप्रिमांडेड. वो बोल नहीं सकते थे, कर नहीं सकते थे. उनके साथ ह्यूमन राइट्स अब्यूज हो रहा था. यूक्रेनियन सरकार कुछ नहीं कर रही थी. तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन दिया. ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन का नाम जब यूएस दे इराक में, तब वो सही है. यूएस दे लिबिया में, तब वो सही है. लेकिन रशिया दे तो वो गलत है. मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैं बस पॉलिटिक्स बता रही हूँ. द सेकेंड थिंग इज, what was Russian? So when Europe put sanctions, so I put sanction on you, okay, no, I will never talk with you now. Yes. But I need money from you. But they were still buying the gas from the Russia. Yes, how? So Russia was sending the crude oil to India and other countries in the South Asia and Southeast Asia, जो उसको रिफाइन कर रहे थे और फिर उसको यूरोप को बेच रहे थे. दोनों का फायदा. तो why is Europe taking oil then? Now just because it is a Russian oil coming from India, then your sanctions don't work. Russia has, the economy has improved in the last 2 years. So also understand that Putin is ex-KGB. So उनका dynamism और tactics अलग-अलग है. The point here is that even the Iranian ambassador in India did question that why did you stop the stakes? You know, you're still taking Russian oil. You could have still taken Iranian oil.
I think the Indian foreign policy at that point of time looked at profitability. The Russian connection was much more stronger than the Iranian connection, in short. And we have much more to gain. Russia has been invested in India right from 1971, even though it was a time of non-alignment. But our steel plants, our nuclear plants, many things are because of Russia or Soviet Union or whatever you want to call it. And that has been, but at the same time, Cold War ke dauran, New Delhi specifically was a hub for both CIA and KGB. और ये अभी भी है. There are a lot of intelligence layers that work along with, जिनमें हम politicians का चेहरा देखते हैं, लेकिन spies का नहीं. तो ये एक अलग diplomacy चलती है. ये हमें कभी पता नहीं चलेगा. Ma'am, my last question to you: what will happen after the America's trade wars? Noted. देखिए, अमेरिका जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो एक्चुअली ट्रम्प का स्लोगन है, अभी नहीं, ये रोनाल्ड रीगन के टाइम से आया है, उससे पहले भी था. ट्रम्प के ऊपर बहुत सारी चीजों का अभी क्वेश्चन चल रहा है. एप्स्टीन फाइल जो है, एप्स्टीन एक मोसाद एजेंट थे जो चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग और पॉलिटिशियंस को हनी ट्रैपिंग और ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व थे. भले ही इजरायली स्टेट ने इस चीज को कंडेम किया और बोला है कि नहीं, वो नहीं थे, बट एनीवे, तो ट्रम्प कब तक टिक पाएंगे, क्योंकि उनका मागा का क्राउड जो है उनसे बिखर रहा है. पहला चीज ये. दूसरा, अमेरिका बहुत बड़े फिस्कल डिफिसिट में है. ये ट्रेड वॉर का मतलब क्या होता है? यानी कि इंडिया के जो बिजनेसमैन है, आपके ऊपर कोई भी चीज एक्सपोर्ट, इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं, मान लो बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं, तो अमेरिकन बिजनेसमैन को अब वो खरीदना मुश्किल पड़ रहा है. खर्चा किसका हुआ ज्यादा? अमेरिकन बिजनेसमैन का. अमेरिकन बिजनेसमैन जो है क्यों नहीं अभी क्वेश्चन कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका में इनकम टैक्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं था. 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के तरह से एक यूज किया गया कि अमेरिकन को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. तो अमेरिकन को फेडरल इनकम टैक्स पे करना पड़ता है, और जो ये इनकम टैक्स पे करते हैं बिजनेसमैन के लिए, तो ऑलरेडी उनका एक टैक्स होता है और प्लस फेडरल टैक्स होता है, तो उनके लिए ये टैरिफ और ज्यादा मुसीबत खड़ा करेगा. और ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ लगाया है, सारी दुनिया के खिलाफ लगाया है. तो अमेरिकन बिजनेसमैन तो हर केस में सफर करेगा. क्यों अमेरिकन बिजनेसमैन रिवोल्ट नहीं कर रहे? क्योंकि ट्रम्प ने उनको एक आश्वासन दिया है कि मैं आपका इनकम टैक्स का मुद्दा हटा दूंगा, जो इंडियन मीडिया कवर नहीं किया है. अब ये होगा नहीं होगा, वी डोंट नो. लेकिन आप देखिएगा कि चाइना को उन्होंने धमकी दी थी, बाकी के देशों को धमकी दी थी, बहुत सारे, लेकिन वो फ्लक्स में रहा और उसके ऊपर नीचे चलता रहा. इंडिया के साथ वो टैरिफ ट्रेड का उनका एक सिंबॉलिक मैसेजिंग पाकिस्तान को सपोर्ट करने का है, जिसमें 60% से ज्यादा पाकिस्तान के क्रिप्टो करेंसी में ट्रम्प फैमिली का इन्वेस्टमेंट है. अमेरिकन सरकार ने, ट्रम्प फैमिली. तो आसिम मुनीर को 2 बार व्हाइट हाउस बुलाना, और इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर से सरकास्टिकली सबसे ज्यादा फायदा तो आसिम मुनीर को ही हुआ. उसके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस थे हट गए. उसको एक आयुब खान के बाद ही इज द फील्ड मार्शल, और उसका जो है इंटरनेशनल अपील बढ़ गया. लेकिन अगर आप इस चीज को इस तरीके से समझें कि बार बार 40 से 50 बार से ज्यादा ट्रम्प का ये कहना कि हमने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर करवाया. नोबेल प्राइज 2025 का डेट जा चुका है, 26 के लिए कोशिश कर रहे हैं वो. लेकिन द पॉइंट इज कि वो ये क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो धमकी सिर्फ इंडिया को वो ट्रेड से नहीं दे रहे हैं, प्रो पाकिस्तान होके भी दे रहे हैं. ये कितना कायम रहेगा? क्योंकि इंडियन डायस्पोरा अमेरिका में बहुत ज्यादा है. वो अगर रिटेलिएट कर दे तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो चीजें जो हैं अभी बहुत, कल को अगर ट्रम्प के खुद बिजनेस कम्युनिटी रिवोल्ट कर दे तो कोई भी टैरिफ पॉलिसी नहीं चलेगी ट्रम्प की. लेकिन हाँ, अमेरिका $37 ट्रिलियन के डेप्थ में है. एक आम अमेरिकन के लिए राशन
जुटा पाना मुश्किल है। एक आम अमेरिकन के लिए, वो वाइट हो या अफ्रीकन अमेरिकन हो, नेटिव इंडियन हो, बहुत मुश्किल है। दे हैव टू डू 2 jobs. Even the healthcare and food system. हेल्थ केयर इज वेरी एक्सपेंसिव। अभी अलास्का में आज ही का है, जो कल जो मतलब 15 अगस्त को उनके हिसाब, उनके टाइम से जो मीटिंग हुई थी पुतिन और ट्रम्प की, अलास्का में ग्लेशियर मेल्ट होने के कारण द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग हैज इंक्रीज सो मच कि हर हाउस होल्ड ने पिछले 10 साल में $6,000 से ज्यादा इन्वेस्ट किए हैं टू प्रिवेंट। थैंकफुली अभी अलास्का का अभी नहीं हुआ, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो पूरा का पूरा विलेजेस खत्म हो जाएंगे, टाउन्स खत्म हो जाएंगे। तो बहुत सारा, और आप देखिएगा यूएस में बहुत ज्यादा साइक्लोन्स, हरिकेन्स, ये सब बहुत आते हैं, तो वहां के आम नागरिक के लिए भी बहुत मुश्किल है। ट्रम्प एक, ये सिंबलिज्म मुझे जहां तक लगता है ट्रेड वॉर का, ये डराने के लिए, ये लागू नहीं होगा, क्योंकि उनको अगर पता है कि अगर वो इसको लागू करते हैं तो इंडिया, चाइना और रशिया के ज्यादा करीब चला जाएगा, और RIC को फिर कंट्रोल करना, ब्रिक्स को फिर कंट्रोल करना ट्रम्प से अकेले पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका ना नेटो से पटता है, ना उनका मोस्ट ऑफ दी अदर कंट्रीज से पटता है, लैटिन अमेरिका या करीबियन नेशन से, तो वो आइसोलेट हो जाएंगे। और जितना जितना वो टैरिफ मोनोपोली बाकी के देशों पे लगाएंगे, उतना उतना अमेरिका आइसोलेट हो जाएगा और अकेला हो जाएगा। ये चीज उनको भी समझ में आती है, लेकिन कितने हद तक, ये तो समय ही बताएगा। So I think we can conclude. So thank you, ma'am. Thank you for joining us today, and wish you all the best for your upcoming projects. Thank you so much for the privilege of your time, and I'm very proud of you. आप इतने छोटे उम्र में इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हो, और आपकी पूरी टीम को थैंक यू, और जितने लोगों ने इसे सुना उन सबको थैंक यू। Thank you.